Hi everyone, a very good evening to all of you, and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover two more schemes from the Ministry of Health and Family Welfare. These are Prime Minister's Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission and Tele-MANAS, right? So these are the two schemes that we are going to cover today, and this series of government schemes, my dear friends, is very important for all the government examination, especially the upcoming NABARD Grade A examination. Please give me a thumbs up if all good. If you can see me properly and can hear me properly, then we will quickly start the class. जल्दी से बताइए so that we can start the class. Good evening, everyone. Please give me a thumbs up if all good. All right, chaliye. Let's start the class without any delay and let's talk about the very first scheme for the day, that is Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. This is a very important scheme, and as the name says, we don't have to learn the objective of any particular scheme if we know the name of the scheme. The objective can be easily extracted from the name itself. It is Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, which means the government intends to create the new health infrastructure or strengthen the existing health infrastructure in the country. So that is the objective of this particular scheme: strengthening grassroots public health institutions to ensure the delivery of universal comprehensive primary health care and critical care service. तो पहला जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन. ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है हमारे, मेजरली वो, या फिर आंगनबाड़ी सेंटर्स. ठीक है. उसके बाद द स्कीम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एज वेल. एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक्सपैंडिंग एंड डेवलपिंग एन आईटी enabled disease surveillance system by establishing a network of surveillance laboratories at block, district, regional and national level. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम को एक्सपैंड करना और डेवलप करना, और एक नेटवर्क ऑफ सर्वेलेंस लेबोरेटरीज को एस्टैब्लिश करना. दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, व्हिच इज करंटली हेडेड बाय मिस्टर जेपी नड्डा. क्लियर? The total outlay for this scheme is 64,180 crores for a period of 5 years, that is till 2025-26. Of course, this scheme is going to be extended. जैसा कि मैं आपको हर क्लास में ऑलमोस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, that all schemes, my dear friends, were approved till 2025-26. Right now, all the schemes are going to be extended for the next 5 years in consonance with the 16th Finance Commission period. ठीक है, इन कॉन्जनेंस विद द 16th फाइनेंस कमीशन पीरियड, दैट इज 26-27 टू 2030-31. राइट. अब ये जो 64,180 करोड़ है, इसमें 54,204.78 करोड़ इज फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट, while 9,339.78 करोड़ इज फॉर द सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट. ठीक है. और ये क्वेश्चन एक बार आरबीआई के पेपर में आ चुका है, जिसमें उन्होंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो कंपोनेंट है उसका आउटले उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था, एंड इन दी ऑप्शन 54,000 समथिंग का एक ही ऑप्शन था, तो करेक्ट आंसर 54,204 करोड़ था उसका. ठीक है. तो ये आपको सेपरेट आउटले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट और सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट के भी याद रखने हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट में जो भी इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, the cost of that infrastructure will be shared between the center and the state governments, while in the central sector component the cost of the infrastructure shall be borne by the government of India, the central government. क्लियर हो गया? अब इसमें दो कंपोनेंट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया. बात करते हैं दोनों की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट और सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट में सबसे पहला जो आता है सब component, you can say Ayushman Bharat Health and Wellness Center in rural areas, which are now called as what? Ayushman आरोग्य मंदिर. ठीक है. पहले इसका नाम क्या था? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था. अभी इसको क्या बोलता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर. ठीक है. तो कितने? 17,788 17,788 सब हेल्थ सेंटर्स के लिए या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. Support will be provided for infrastructure development for 17,788 sub-health centers in 7 high focus states and 3 northeastern states. ठीक है. ये नंबर आपको याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार. राइट. और ये 7 हाई फोकस स्टेट्स और 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं? 7 हाई फोकस स्टेट्स है दोस्तों: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल.
और 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर एंड मेघालय। क्लियर? द सेकंड सब कॉम्पोनेंट इज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अर्बन एरियाज, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन अर्बन एरियाज। सो फॉर दिस 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, देन support will be provided for 3,382 block public health units in 11 high focus states। 11 high focus states में और यूटीज में 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है वो बनाए जाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। और ये 11 फोकस स्टेट्स और यूटीज आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 730 integrated district public health laboratories will be established in all the districts, ताकि जो डायग्नोस्टिक जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े फॉर देयर मेडिकल टेस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। हाउ मेनी? 730। and 602 critical care hospital blocks are going to be established in all districts with a population of more than 5 lakh। जो भी डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है उन सब जगह पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 602। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर? उसके बाद सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स पे आते हैं। दोस्तों ये नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये नंबर्स इस स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, डेफिनेटली ऑप्शंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। अब आ जाओ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट पे, फॉर विच द कॉस्ट विल बी बोर्न, द एंटायर कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द एंटायर कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, support for 20 metropolitan surveillance units, 5 regional national center for disease control, and implementation of integrated health information platform in all states। And I don't understand one thing, why people are not attending these government scheme classes। फिर जब notification आ जाएगा then they start crying, then they would definitely start crying कि government schemes कैसे करें कैसे करें कैसे करें। अभी जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना नहीं है, नोटिफिकेशन में जब रिवीजन करा रहा हूँ तब आ जाएंगे 200 लोग क्लास के अंदर। I don't understand this। Paripurna Mediclaim Ayush Bima Abhijit I covered in PIP class. That is not a landmark scheme. So in this series I am only covering the landmark schemes of the government जहाँ से question आने के chances हैं। All those schemes which have been in news for the last 1 year, you have to cover them through the PIB। Regarding Banrega, you don't have to do it because now we have VBG Ramji that has been covered in pretty much detail। Next, support for 17 new point of entry health units and strengthening of 33 existing units। पॉइंट ऑफ एंट्री हेल्थ यूनिट्स मतलब वही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो बिल्कुल एंट्री हेल्थ यूनिट्स है। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर एंड एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, सपोर्ट फॉर 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स एंड 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स। ये आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। बायो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रेंथनिंग पैंडेमिक रिसर्च एंड मल्टी सेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ। और उसके बाद लास्ट, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू तो द बेसिक इन्फॉर्मेशन की एक्चुअली इस स्कीम में हो क्या रहा है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज एंड 4 न्यू रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये था सेंट्रल सेक्टर कॉम्पोनेंट। तो बस इतना ही पढ़ना है हमें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में। टाइम गलत डाला था लेक्चर का, क्या बात कर रहे हो? क्या डाला हुआ था? ऐसा हुआ था क्या? टाइम गलत डाल रखा है क्या भाई क्लास का? बात कर ली जाएगी टीम से अगर ऐसा है तो। क्या टाइम डाला था? ये चेक कर लेते। चलो कोई बात नहीं, अभी तो चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है रोहित, थैंक्स फॉर रेजिंग दिस, आई चेक इट आउट। हो सकता है इसीलिए स्टूडेंट्स कम है क्लास में। चलो, ये है इसका माइंड नॉर्म दोस्तों, यू कैन सी इट। ये सारे नंबर्स आपको सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स के नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट दिस।
one institution for one health, WHO Southeast Asia regional research platform, 9 BSL 3 laboratories and 4 new National Institute of Virology. ये वाले आपको याद करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दैट इज टेलीमानस. अगेन टेली से एक बात तो समझ में आ गई, दैट देयर इज सम काइंड ऑफ टेली कंसल्टेशन इन्वॉल्व. ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ टेली कंसल्टेशन अवार्ड. नाउ व्हाट काइंड ऑफ टेली कंसल्टेशन इज दिस? मानस स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, mental health assistance and networking across states, and networking across states. ठीक है, तो बस अब आपको समझ में आ जाएगा कि दैट टेली कंसल्टेशन किसके रिगार्डिंग है. दीज आर दी काउंसलिंग सेशंस फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिजीज. किसी भी तरीके की दिमागी बीमारी, किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कोई इंसान गुजर रहा है, देन दैट पर्सन कैन हैव द टेली कंसल्टेशन थ्रू द टेलीमानस सेल्स. ठीक है, चलिए. तो टेलीमानस क्या है जी? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री, सबसे पहली बात क्या है? फ्री टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली टू पीपल इन रिमोट एंड अनसर्व्ड एरियाज. क्योंकि देखो, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी है रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ. In our country, people are not aware about their mental health problems. In our country, sharing mental health problems is a kind of taboo, which I believe should not be, because जैसे हमारे हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, बुखार होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में दर्द होता है. दैट इज कॉल्ड ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रॉब्लम्स, है ना. तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट फ्रीली एंड द सोसाइटी शुड एक्सेप्ट इट. अब ये बड़े शहरों में हो चुका है, बट इन द रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज, पीपल आर स्टिल कॉलिंग सच पीपल एज पागल. सीधा बोल देते हैं, यार ये तो पागल है. दैट इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल, है ना. पागल क्यों है भाई? ठीक है भाई, प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है. देर आर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज विच आर गोइंग ऑन दीज डेज, स्पेशली इन सच अ फास्ट मूविंग इंडिया, जहाँ पे इतना ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर चीज को लेके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जा रहा है ना. तो ऐसे में प्रॉब्लम्स तो है. सो इफ अगर आपके आसपास भी if anybody is suffering from such a kind of problems, then do show some empathy. Do tell them that there are a lot of hospitals now in Delhi, Mumbai, NCR, Chennai, which are providing beautiful treatments for such problems. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, free telemental health services are being provided to the people who are suffering from any kind of mental illness. 2022 में लॉन्च हुआ था. The nodal implementing agency is NIMHANS in Bangalore, which is National Institute of Mental Health and Neurosciences. Ministry, of course, is the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, yes, of course. मैं कहूँगा विमेन के लिए तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में आज भी. ठीक है ना, हम दिल्ली, पंजाब, मुंबई में बैठ के कह देते हैं कि अरे नहीं, अब तो वुमेन एम्पावरमेंट एकदम बढ़िया हो गया है. ऐसा नहीं है. आज भी अगर आप देखोगे रूरल इलाके में, रिमोट एरियाज में, आज भी women are facing a lot of issues. Women are facing suppression, I would say, simply. ठीक है, चलो. Technology support is being provided by IIT Bangalore, that is International Institute of Information Technology, Bangalore. Technical support is being provided by IIT Bangalore and National Health Systems Resource Center. अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आएगा यहाँ पे, सर बैंगलोर में तो IIT है ही नहीं. कि मेरे को भी लगता है, और ये इसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला, बट स्कीम का डॉक्यूमेंट हो या PIB हो, सब जगह यही मेंशन है दैट टेक्निकल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय IIT बैंगलोर. ठीक है, तो हम भी यही मान के चलेंगे. अब इस स्कीम के अंदर जो है दोस्तों, टोटल 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं, जिसके थ्रू द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड. सर्विसेज कैसी? टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज. अब ये कैसे होता है? ये जो इसका ऑपरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो कैसे होता है? तो द ऑपरेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग डन इन 2-tier मॉडल. टियर 1 में क्या होता है? देर आर स्टेट लेवल टेलीमानस सेल्स स्टाफ्ड विद ट्रेन्ड काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर. मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, आई विल कॉल टू दीज स्टेट लेवल टेलीमानस सेल्स, जहां पे ट्रेन्ड काउंसलर्स और ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है वो इमीडिएट केयर मेरे को देंगे. ठीक है, एंड एज ऑफ March 2026 in all the 36 states and UTs there are 53 टेलीमानस सेल्स. ये नंबर चेंज होता रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यू हैव टू बी अपडेटेड थ्रू द PIB क्लास. उसके बाद अगर यहाँ पे इमीडिएट केयर से बात नहीं बनती है, उसके बाद टियर 2 पे
Specialists are involved at district mental health program centers or medical colleges for advanced consultations and physical intervention. ठीक है, कि मतलब अब जो पेशेंट है उसको दवाइयों की जरूरत है या फर्दर काउंसलिंग की जरूरत है या फर्दर इंटरवेंशन की जरूरत है, तो स्टेट लेवल टेलीमानस सेल्स के बाद आते स्पेशलिस्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेंटर्स में सीटेड होते, अवेलेबल होते. ठीक है, दे कैन प्रोवाइड एडवांस कंसल्टेशन, दे प्रोवाइड एडवांस कंसल्टेशंस एंड दे विद द फिजिकल इंटरवेंशन दे प्रोवाइड केयर केयर टू द पेशेंट्स. क्लियर? तो दो टीयर का इम्प्लीमेंट मॉडल है. कॉल किस नंबर पे करना होता है? 14416 या फिर 180008914416. The calls are supported in 20 regional languages, ensuring inclusivity. ठीक है, इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस, यानी कि देर इज एन ऑटोमेटेड कॉल बैक सिस्टम, ताकि अगर कोई कॉल मिस हो जाती है तो टाइमली सपोर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक कॉल बैक सिस्टम के थ्रू. स्टार्टिंग विद ट्रेन काउंसलर एंड एस्केलेटिंग टू स्पेशलिस्ट इफ रिक्वायर्ड. इट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद ई संजीवनी. जो टेलीमानस का पूरा सिस्टम है, दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद ई संजीवनी, जिससे ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन जो है वो ली जा सकती है. क्लियर? एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ मोबाइल ऐप, Tele-MANAS mobile app, which is basically a library or repository of mental health resources, self-help tools and video consultations. क्लियर है जी? तो ये है इसका क्या है, माइंड नॉर्म है इसका. आप इसको देखिए और इसको इससे रिवीजन करिए. ठीक है, ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दीज टू स्कीम्स. 15 मिनट के अंदर दो स्कीम्स. मजा आ गया होगा, आई होप आप लोगों को. और आ गया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDFs. And also you can get the link to the Telegram channel in the description. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, give me a thumbs up. All right, let's find it up. I'll see you in the next class on Wednesday. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.